Hello students, welcome back to my class. So today we will learn how to separate a liquid from a liquid mixture. Okay, a liquid from a liquid mixture. Before starting separation of liquid from liquid mixture, let's take a look what is distillation process. Actually, distillation process is a process in which we will separate or we can separate a liquid from a liquid solid solution. A liquid from a liquid solid solution, or you can say a solid from liquid solid solution by the process of first evaporation. On applying heat, liquid is evaporated, right? On evaporation and then condensation, right? So how to separate a liquid when you have a liquid and solid mixture? So first of all, this is your setup. So what this setup is also available in your laboratory lab, chemistry lab. So let's start it. First of all, take the solution of that liquid and solid. Like if you have solution of water plus NaCl. Suppose that you have solution of water plus NaCl, or you can say you have seawater. Now, how you can separate salt from seawater, or you can say that how you can get pure water from seawater, right? So first thing is take the solution of water and salt. Take the mixture of water and salt, so that is a homogeneous mixture. Take the mixture of water and salt, put here, right? Here is your mixture of water and salt. So what will happen? This is wire gas. Wire gas is a support for that vessel. So when we apply heat, liquid and salt solution start evaporating. So here it start evaporation. That is a thermometer. That is a thermometer which indicate the temperature, right? So first thing is evaporation of that liquid. First thing is evaporation. First thing is evaporation, and after evaporation you can collect it in any that is actually a collecting flask. So what happen, आपके पास क्या है कि एक शुगर और ये वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन है. आपने वाटर और सॉल्ट के सोल्यूशन को इस वेसल के अंदर रख दिया, कंटेनर के अंदर रख दिया. ये पूरा का पूरा सेटअप लैब में है. आपने रख दिया, हीट अप्लाई करा. बंसन बर्नर यूज़ करते हैं यहाँ पे. बंसन बर्नर गैस का बर्नर होता है. यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर से हम यहाँ गैस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे. फिर ये बर्न होता है, ये लिक्विड बॉयल होता है, राइट? हीट होता है. फर्स्ट हीट होने के बाद इवोपरेट होता है. अगर मैं वेपोराइजेशन कहता हूँ तो पर्टिकुलर टेम्परेचर देना जिससे कि ये इवोपरेट हो. मैं कह रहा हूँ इवोपरेट हो रहा है, मतलब मैंने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया और ये इवोपरेशन स्टार्ट कर दिया. जब ये इवोपरेट हो रहा है, ये कॉक के थ्रू मैंने इसे फिक्स करके रखा है. जब ये यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है तो ये वेपर के फॉर्म में है. फिर यहाँ से ये इस ट्यूब के थ्रू पास होता है. अब ये वेपर के फॉर्म में है, मुझे चाहिए लिक्विड. तो एक वेपर को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो व्हाट टू डू? कंडेंसेशन. विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन यू कैन कन्वर्ट अ गैसियस और वेपर substance at vapor molecule into liquid. So
अब यहाँ पे मुझे कंडेंस करना है, तो कंडेंस करने के लिए मैंने क्या करा, इस ट्यूब के दोनों साइड में, ये ट्यूब के इस दोनों साइड में मैंने एक और सेटअप लगाया है ट्यूब का, जिसमें यहाँ से मैं कोल्ड वाटर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं कोल्ड वाटर दे रहा हूँ, और ये कोल्ड वाटर क्या कर रहा है, ये कोल्ड वाटर यहाँ जा रहा है और यहाँ पर, यहाँ से इस पूरे अपर पार्ट वाले फ्लूइड, ये इसमें ये फ्लूइड यानी लिक्विड मूव कर रहा है। जब ये यहाँ पे लिक्विड मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस पाइप को कूल कर रहा है। इस पाइप को कूल करने की वजह से क्या होता है, ये इवोपरेशन जो स्टीम या गैस जो जा रहा है वो आपको कंडेंसेट हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है आपका कंडेंसेशन। आफ्टर कंडेंसेशन इट कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, राइट। सो by the process of distillation you can separate a pure water from salty solution, right. So this is our setup of distillation. Now after distillation our new topic is fractional distillation, or you can say process of separation. कैसे हम सेपरेट करेंगे, एक लिक्विड को लिक्विड के अंदर से दो लिक्विड का मिक्सचर बना दिया, अब मैं कह रहा हूं कि इस लिक्विड को सेपरेट कीजिए। सो हाउ यू कैन डू दैट, सो लिक्विड सोल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, और लिक्विड मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मिजिबल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इमिजिबल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मिजिबल। मिजिबल लिक्विड मीन्स सपोज दैट आपके पास दो मिक्सचर है, दो लिक्विड है, अल्कोहल एंड वाटर. नाउ यू आर गोइंग टू मिक्स अल्कोहल विद वाटर. what will happen? Alcohol and water combine with each other completely. Combine with each other completely. उन दोनों के बीच में पर्टिकुलर कोई एक बाउंड्री वॉल नहीं है जो सेपरेट कर रहा है कि ये पार्ट अल्कोहल का है, ये पार्ट वाटर का है. नहीं, ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना रहे हैं, कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जा रहे हैं. राइट, that is called miscible liquids. Right? So there is no separation, no boundary wall, a single layer. Now second is our immiscible liquids. Immiscible liquids means दो लिक्विड को मैंने मिक्स करा, उनके बीच में एक बाउंड्री वॉल है जो सेपरेट कर रही है कि इससे अबव जाएंगे तो दूसरी लिक्विड है, बिलो जाएंगे दूसरी लिक्विड है. तो फर्स्ट प्रोसेस द मिजिबल अगर हो, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिजिबल हो जाए जैसे वाटर एंड अल्कोहल, उससे आप सेपरेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो दोनों में कॉमन नहीं हो. बार बार मैं समझा रहा हूँ, किसी भी दो चीज़ को सेपरेट करने के लिए आप देखो कि उन दोनों में क्या कॉमन नहीं है. तो हमने क्या देखा कि भाई मिजिबल लिक्विड्स में कॉमन क्या नहीं है, उनका बॉइलिंग पॉइंट. They have difference in boiling point. Like alcohol C2H5OH, ethanol, common alcohol. This common alcohol, what is the boiling point of that common alcohol? 78 degrees Celsius. So 78 degree, and what is the boiling point of water? 100 degree. So there is a difference of boiling point, right? Now ये वाला पॉइंट मेरे काम आएगा डिस्टिलेशन में, मतलब सेपरेशन में. तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अगर मैं सेपरेट करता हूं तो इसका नाम हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. भाई डिस्टिलेशन से लिक्विड सेपरेट करना आपने देख लिया विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान में रख के मैं कर रहा हूं, तो ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मिजिबल लिक्विड, फॉर मिजिबल लिक्विड वी कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. For immiscible liquid, we have to use another method, right? We will discuss it later. So let's separate a liquid solution having difference in boiling point by fractional distillation. Now our name of the process is fractional distillation. So this will not distillation, fractional distillation. So what is the difference between distillation and fractional distillation? So what difference in setup? Instead of all things are same, जो कुछ पहले था वही रखेंगे. यहाँ पर एक जोन डेवलप होता है, इतने दूर में एक जोन डेवलप कर रहा हूँ. जोन किस टाइप का जोन है? यहाँ पे मैं छोटे छोटे
ग्लास के बीड्स रख दे रहा हूँ, ग्लास बीड्स, मार्बल जैसे कंचे नहीं होते मार्बल, ग्लास बीड्स, मैं ग्लास बीड्स रख दे रहा हूँ। ये ग्लास बीड्स हैं। सो ये क्या करेंगे, ये जो टेम्परेचर दूंगा मैं, जैसे अब मैंने कहा कि मेरे पास सोल्यूशन क्या है, नाउ वी हैव सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल या यू कैन से अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर, and I am saying that boiling point of alcohol is 78, for 100 it's 100 for water, right? There is a difference between boiling points of these two substance, boiling point. अब क्या हुआ, मैंने वाटर और अल्कोहल के सोल्यूशन को इधर रख दिया कंटेनर में। हियर आवर वाटर plus alcohol C2H5OH, ethanol, that is called common alcohol, ethanol. So मैंने इधर वाटर और अल्कोहल को कंबाइन करके रख दिया। अब क्या हुआ कि मैंने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो यहाँ से लिक्विड इवोपरेट होना स्टार्ट हुआ, वो लिक्विड इवोपरेट हो रहा है, यहाँ तक आया। ये बीड्स का वर्क क्या है पहले तो ये जान जाइए। ये बीड्स क्या करेगा, जो मेरा वेपर जा रहा है, मान लीजिए मेरा यहाँ जो वेपर जा रहा है यहाँ पर, उस वेपर का टेम्परेचर 80 है, 80 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ थर्मामीटर लगाया मैं चेक कर सकता हूँ। 80 डिग्री पे अगर मेरा यहाँ वेपर का कंडेंस, यहाँ पर वेपर का टेम्परेचर 80 डिग्री है। सो जैसे जैसे ये अपना हीट ट्रांसफर करता जाएगा इन ग्लास सीड्स को, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 79 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 78 हो जाएगा। तो मेरा मोटो क्या है, मुझे इस का टेम्परेचर 78 मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि 78 तक अगर मैं रखता हूँ तो इस लिक्विड के अंदर से सिर्फ मेरा अल्कोहल जाएगा ऊपर, वाटर नहीं जाएगा, राइट? नाउ मैंने स्टार्ट कर दिया, हाँ, तो अब मेरा वाटर इवोपरेट हो रहा है, सॉरी अल्कोहल इवोपरेट हो रहा है। So temperature of alcohol is, if temperature of alcohol is 80 degree, it will go reduce to 79. After 79, it's 78. So that is our fixed temperature. अब मेरा ये अल्कोहल वाला पार्ट वेपोराइज होकर यहाँ पे आया, वापस मैंने वही कंडीशन करा जो डिस्टिलेशन में करा था। आफ्टर इवोपरेशन कंडेंसेशन, सो इस कंडेंसेशन हो रहा है इधर, और यहाँ पर मुझे जो मिलेगा वो होगा मेरा प्योर अल्कोहल, C2H5OH, प्योर अल्कोहल वी कैन। और वाटर जो होगा मेरा इधर ही रह जाएगा, क्योंकि वाटर को तो इवोपरेट होने के लिए 100 डिग्री चाहिए, बट मैंने कितना दिया, 78 दिया। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन विच वी कैन सेपरेट a liquid. Which type of liquid? Which is miscible liquid. Two miscible liquid mixture, you can separate two miscible liquids by the use of fractional distillation. So fractional distillation is the based on which principle? Difference in boiling point. अगर मैं डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट रखता हूँ तो जितना बॉइलिंग पॉइंट दूंगा एक सब्सटेंस मुझे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वैसा का वैसा रहेगा। ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि दो चीज़ों के बीच में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस मोर देन 20-25 हो, तो एक अच्छा डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू। ये जोन एक ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है। So our next separation method is by the help of separating funnel. By the help of separating funnel, how we can separate immiscible liquids. Immiscible liquids means अगर लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं हुआ है completely. For example, water and any petroleum like kerosene, petrol, diesel, whatever, they are not dissolved with water.
अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, जो कैरोसिन, सपोज दैट कैरोसिन एंड वाटर मैंने मिक्स करा, तो जो कैरोसिन ऑयल है वो कैरोसिन ऑयल मेरे इस वाटर के अपर सरफेस पे फ्लोट करेगा. वाई इट हैपेंस, क्यों ये फ्लोट कर रहा है वाटर के अपर सरफेस पे? क्योंकि डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. सो अब मैं यहाँ पर डिफरेंस क्या देख रहा हूँ, मैंने कहा कि कभी भी सेपरेट करना है तो कोई एक पॉइंट देखिए जो दोनों लिक्विड में या दोनों सॉलिड में डिफरेंस हो. डिफरेंशिएट क्या करता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो इन दोनों को क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है डेंसिटी. हियर आवर प्रिंसिपल इज डिफरेंस इन डेंसिटी. सो ये डिफरेंस इन डेंसिटी पे वर्क करता है. डिफरेंस इन डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो. मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम इज सेम, इफ मास इज डिफर देन हम डेंसिटी की बात करते हैं. डेंसिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि डेंसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ अ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी more than water, then it will shrink in water. If any object have density less than water, then it will float on water. तो वाटर के ऊपर फ्लोट जो करता है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, जो वाटर में श्रिंक कर जाता है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है. दैट इज द डिफरेंस इन डेंसिटी. सो इनविजिबल लिक्विड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ डिफरेंस इन डेंसिटी क्या होता है कि वाटर इज हैवियर देन कैरोसिन. तो वाटर जो होता है नीचे आ जाता है और कैरोसिन ऑयल ऊपर फ्लोट करता रहता है. अब इनके बीच में एक बाउंड्री वॉल होता है. ये वाटर का लेवल खत्म हुआ और यहाँ से कैरोसिन का लेवल स्टार्ट हुआ. सो इसे बोलते हैं इनविजिबल लिक्विड. तो वो यहाँ पर हम वर्क करता है, प्रिंसिपल यही काम करता है. तो ये वाला है, दिस इज आवर सेपरेटिंग फनल. विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट two immeasurable liquids. How we can separate? So here is an example of water and kerosene oil. यहाँ पर मेरा kerosene oil water भरा हुआ है. Lower surface is lower part is pure water, right? And upper part is kerosene. There is a separation. ये separate कर रहा है wall. ये separate कर रहा है दोनों को. ये बता रहा है कि इस भाई क्योंकि ये float कर रहा है तो इस लेयर के above जो है kerosene है, इसके below water है. मैं क्या करूँगा, ये स्टॉप कॉक है, ये स्टॉपर है. इस स्टॉपर के हेल्प से जैसे मैं इसे लूज करता हूँ वाटर आपका इस बीकर के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है. सो वाटर का लेयर आता जाएगा तो आपको दिखेगा डिफरेंस इन, देयर इज डिफरेंस इन कलर ऑल्सो. सो तो जैसे ही दिखेगा वाटर वाला, जैसे ही पूरी कंप्लीटली बीकर में आप कलेक्ट कर लेते हो, स्टॉपर को रोक दो, वाटर अलग हो गया, कैरोसिन अलग हो गया. सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी वी कैन सेपरेट इममिजिबल लिक्विड्स फ्रॉम अ liquid solution. So our next technique is chromatography. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी का. मैं आपके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, बट मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड के लिए, मेडिसिन के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जितने भी मेडिसिन बनते हैं, उन सब में इस क्रोमेटोग्राफी का बहुत बड़ा यूज़ है. So let's start chromatography. So in case of chromatography, first what is chromo? Chromato की बात कर रहा हूँ. Chromo means color. COLOUR. So color. So यहाँ पे हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे चीज़ों को कि क्या इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या है, तो with the help of color we can understand the purity. अगर हम चेक करना चाहें कि ये प्योर है या इसमें कुछ मिक्स है, तो हम विद हेल्प ऑफ कलर और क्रोमेटोग्राफी हम यूज़ कर सकते हैं. क्रोमेटोग्राफी का जो यूज़ होता है वो दो तरह से हो सकता है. एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर के थ्रू, तो एक ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, और विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफिक सोल्यूशन, लिक्विड इन द फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ ये लिक्विड. तो लिक्विड के फेज में ये रहे या पेपर के फेज में रहे, दोनों से हम ये सेपरेशन वाला प्रोसेस हो सकता है. सपोज दैट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो लिक्विड फेज में है. एक लिक्विड है मेरे पास और मैं जानना चाहता हूँ कि दिस लिक्विड इज प्योर लिक्विड और दिस लिक्विड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ लिक्विड्स. सो ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स? फर्स्ट थिंग, सो प्रिंसिपल इज
हर एक सब्सटेंस का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड इज डिफरेंट. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड इज डिफरेंट इन वाटर और एनी सोल्यूशन. इसका मतलब एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब कर लेना. सपोज दैट कोई कलर रखा हुआ है लिक्विड के फेज में, मैंने पेपर रखा और पेपर को हटाया तो पेपर ने उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, वो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ दैट मटेरियल ऑन सॉलिड सरफेस, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन बेसिस पे कि एब्जॉर्प्शन अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ पीस ऑफ, सपोज दैट मेरे पास ये मार्कर है, सपोज दैट आई हैव दिस मार्कर एंड टू लिक्विड्स आर देयर. फर्स्ट लिक्विड इज वाटर एंड सेकंड लिक्विड इज सम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, kerosene oil, whatever it is. So now I am going to absorb one by one. So first मैंने इस वाटर के ऊपर इस चीज़ को रखा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर एक्यूमुलेट होंगे, उनका एक्यूमुलेशन और एक ऑयल वाला एक्यूमुलेशन, दोनों में डिफरेंस होगा. जो ऑयल ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर आकर चिपकेंगे वो ज़्यादा देर तक सस्टेन भी रहते हैं, वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे एक्यूमुलेट रहेंगे कंपेयरिंग टू वाटर. तो अलग अलग चीज़ों की सॉल्युबिलिटी भी अलग होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग होती है. तो इस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और एब्जॉर्बिंग पावर पे हम बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे. ठीक है, सो in this part we will discuss how we can separate different or how we can check the purity of any liquid. Suppose that मेरे पास एक liquid है, ये एक beaker है. Now I am going to add more than 2 or 3 colors in it. Suppose that it is full of, that is my water, that is water, and now I am going to add red color, blue color, green color. So these 3 colors are added in that solution. So what will happen? मैंने तीनों कलर को मिला के एक सोल्यूशन बना लिया. अब मैं जानना चाहता हूँ, ये सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा कि या टेल मी इट्स अ प्योर सब्सटेंस और इट दिस लिक्विड इज प्योर और दिस लिक्विड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ लिक्विड या लॉट ऑफ कलर. तो नाउ हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट और हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दीज कलर्स. तो आपको क्या करना है, दो मैंने सोल्यूशन बताया, दो चीज़ें बताई. एक तो पेपर के हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, यू कैन इजीली चेक इट. कैसे चेक कर सकते हो, एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर उस जो लिक्विड सोल्यूशन है आपका, उसके एक ड्रॉपलेट को विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर आप इस पर ड्रॉप करो. ड्रॉप करोगे तो ये एक सॉलिड मटेरियल है मेरा, एक पेपर है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है. जैसे आप ड्रॉप करोगे तो जो कलर, मान लो 3 या 4 कलर है, उनमें से डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी. हर कलर की अपनी सॉल्युबिलिटी है. तो जिस कलर की सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले अपीयर होगा. सपोज दैट आपके पास रेड, ब्लू, ग्रीन, यू हैव 3 कलर्स. सो इफ यू ऐड इट, जैसे आप 1 ड्रॉप यहाँ पे देते हो, सपोज दैट रेड की सबसे ज़्यादा आपको सॉल्युबिलिटी है, तो रेड कलर आपको सबसे पहले अपीयर होगा. सबसे पहले रेड कलर अपीयर होगा. इसके बाद जिसकी सॉल्युबिलिटी होगी, सपोज दैट इसके बाद ब्लू की सॉल्युबिलिटी है, तो आफ्टर रेड यू कैन इजीली सी ब्लू कलर. ब्लू के बाद आपको ग्रीन दिखेगा. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर आप इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे देख सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ कलर or with the help of chromatographic paper you can easily identify the purity or purity of any liquid. That is chromatographic. Chromatographic में मैंने एक बताया था solution वाला भी. solution वाले में क्या करते हैं कि पर्टिकुलर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं पढ़ना है डिटेल में. मान लीजिए ये मेरे पास एक, सपोज दैट मेरे पास एक ट्यूब है, ऐसा कुछ, और मैंने वैसे ड्राइंग मेरी इट्स वेरी बैड, राइट. तो ये मान लीजिए अलग अलग, यहाँ पे एक सोल्यूशन पहले से फिल होगा,
एक सोल्यूशन एल्युमिनियम का होता है, वो पहले से फिल होता है। यहाँ पर एक स्टॉपर की हेल्प से मैं कलेक्ट कर सकता हूँ लिक्विड को। मैंने क्या करा, वो जो 2-3 कलर मिक्स करके रखा था उसको इसमें पॉर कर दिया। सो व्हाट विल हैपन व्हेन दिस सॉल्यूशन इज कंबाइंड विद, हियर देयर इज अ सॉल्यूशन, हियर अ सॉल्यूशन इज देयर, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कलर को। जैसे मैं इस कलर वाले सॉल्यूशन को, जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन था, मैंने तीनों को ऐसे पॉर किया, जैसे ही मैं इसके अंदर रखूंगा तो क्या होगा, रेड कलर वाला बिल्कुल अलग अपीयर होगा, ब्लू वाला अलग अपीयर होगा, रेड जैसे सपोज दैट मेरे पास रेड है तो रेड विल अपीयर लाइक दैट। और ये वाला जो लिक्विड है, ये लिक्विड सेपरेट किए रहेगा। इसके बाद आपका अगर ब्लू है तो ब्लू ऐसे आ गया, ब्लू अलग बिल्कुल अपीयर हो गया। इसके बाद भी लिक्विड है, इसके बाद ये वाला कलर ग्रीन हो जाएगा। सो ग्रीन, ब्लू, रेड, all three are separated by this chromatographic liquid. So that is the process of separation of liquid from liquid mixture. Thanks for today.